माननीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी एवं विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित आप सभी का भी स्वागत करता हूँ। संस्कृत कार्य मंत्रालय के सचिव श्री उमंग नरूला जी, संस्कृति मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव अरुण नरूला जी, संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री अरुणीश चावला जी और संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती उमा नंदी जी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रारूप इस प्रकार होगा। सर्वप्रथम संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री अरुणीश चावला भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक पीपीटी प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी अपना संबोधन देंगे। माननीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी भी आपको संबोधित करेंगे और तत्पश्चात माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी अपना संबोधन देंगे। इसके बाद प्रश्नोत्तर का सेशन होगा। अब मैं संस्कृति सचिव श्री अरुणीश चावला जी से निवेदन करता हूं कि वे पीपीटी प्रस्तुत करें। Honorable ministers and our friends from the media, as my colleague just mentioned, Government of India has decided to commemorate the 75 years of the adoption of the Constitution of India in a big way. Next. As you know, this year marks the 75th anniversary of the adoption of our Constitution, and Government of India is commemorating this occasion with a year-long celebration across the country starting on 26 November 2024. Next. The focus of this initiative is to highlight the foresight of the makers of our Constitution and the tremendous effort that has gone into making what we today know as the Constitution of India. Next. The celebration and the commemoration of the 75th year will give an opportunity for the citizens to appreciate the calligraphed version of the Constitution. Normally, we get to see the books that are sold on the shops, and that is what we get to read in schools. The website will display the calligraphed version, which is the original version of the Constitution. We will also make true copies and display it prominently in every state capital. In addition to that, the art and calligraphy of the Constitution has been researched on this occasion by the experts in the Ministry of Culture, and that booklet will also be issued on this occasion, will be available on the website, and will also be part of exhibitions all across the country. This occasion will give us an opportunity to be aware of the full scale and scope of this. Friends, the activities during this year-long celebrations have been divided into 4 parts, 4 themes: Preamble of India, Know Your Constitution, the Making of our Constitution, and the Glory of our Constitution. The mass reading of the preamble. People across the country will be able to read. The second theme is Know Your Constitution, and for this we'll be organizing special sessions and assemblies in all schools, colleges, and institutions. They're using this commemoration to do more research into the making of the Constitution. As you know, Constitution has already been translated into many languages. This occasion will also be used to commemorate and celebrate the people involved in the making of our Constitution. This will include the prominent members of the Constituent Assembly, the members of various committees, their chairpersons,
the members representing various segments of our society, particularly the women members. And there will be events organized at their birthplace and the landmarks in their journey. And we would also be looking and researching into their thoughts, their ideals, and coming out with dedicated outputs and brochures and write ups on what they thought and envisioned a modern India to be. These are the prominent constitution makers whose effort, whose vision, whose ideals went into the making of our constitution. The Gram Sabhas will be organized in every village, special Gram Sabhas, to read the preamble, to highlight the constitution, including fundamental rights and fundamental duties. A grand celebration in the Central Hall of Parliament, which will be led by Her Excellency the President of India and our Honorable Prime Minister. And on this occasion, there will be a mass reading of the preamble. A special coin and stamp will be released. The books prepared by Ministry of Law and Justice on the making of the Constitution, and the art and calligraphy of the Constitution, a special booklet, who worked very hard to produce the beautiful completed and will be unveiled tomorrow. Next. I'll just end with a brief introduction of the website, the campaign website, and where everyone, the mass website where everyone will log in. It is simply called Constitution 75. You can just type constitution75.com on your Google or the search engine on your phone, laptop, and you will land straight onto this website. It will be the first entry on the web page. The Constitution available in various languages. It will have the preamble in all scheduled languages. It will also have the debates of the Constituent Assembly, and it will also have the reports of the various committees. What the landing page will look like, and if you see below the Constitution, there is a button called Participate, and below the button is written, read the preamble and receive the certificate. So every citizen, when he types Constitution 75, this will come the first thing on the Google page. Just enter your details, just your name, where you are, record your video, then a preamble will come. You have the choice to select the language you want to read it in, select the language, read the preamble, it will record you reading the preamble. Step 3, press the button, just upload it, and you can download a certificate individualized to your having participated in this great commemoration. Next. This is what it will look like when you enter your name and page. So that's all you need to enter. There is no login, nothing. You just press the button, the camera screen will appear. You select the language, you read the preamble in your language, it will record it. Just press the button, it will upload, and you download the certificate. थैंक यू वेरी मच। करने लायक मुझे जिसे लग रहा है वो ये है कि 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर के संविधान का सम्मान करना और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब का सम्मान करना, ये उनके कार्य पद्धति का हिस्सा रहे हैं। आपको एक डेट याद दिलाता हूं, 19 नवंबर 2015। इससे पहले इस देश में 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। ऐसा नहीं है कि ये दिवस मनाया नहीं जाता था, ये कानून दिवस के रूप में, जिसको हम लॉ डे कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कोई फंक्शन हो गया या कहीं और किसी हाई कोर्ट में हो गया, इसके अलावा इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। लेकिन 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उसमें लिखा रहता है कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर सरकार ये निर्णय लेती है
कि आने वाले समय में 26 नवंबर का दिन प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण निर्णय था नरेंद्र मोदी जी का। उसके बाद अभी आपको जो जानकारी दी गई उसमें बाबा साहब B.R. अम्बेडकर से जुड़े हुए स्थानों का विकास, ये भी नरेंद्र मोदी जी के इसी कालखंड में हुआ जिसको हम पंच तीर्थ कहते हैं। जहाँ उनका जन्म हुआ महू, जहाँ उनका संस्कार हुआ चैत्य भूमि मुंबई, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली 26 अलीपुर रोड दिल्ली, जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया नागपुर, और जहाँ लंदन में उन्होंने पढ़ाई की अम्बेडकर हाउस। ये जो 5 स्थान जो विकसित हुए हैं और ये भी नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में ही हुए हैं। इसलिए मैं कुछ चीज़ों को इसको ऐड करने के साथ, अब कल का जो फंक्शन है वो महत्वपूर्ण फंक्शन है। 75 वर्ष संविधान को अडॉप्शन के पूरे हो रहे हैं। पूरे साल भर ये हमारा कार्यक्रम चलेगा, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हम इसको हर जिले में ले जाएंगे, हर गांव में ले जाने का प्रयास करेंगे, हर तालुका में ले जाएंगे और वहाँ प्रस्तावना का पाठ होगा। और इस संविधान के निर्माण में बाबा साहब और उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों का क्या क्या योगदान था वो हम जनता को बताएंगे। और उसमें जो 15 महिलाएं थी संविधान सभा की सदस्य, उनका क्या क्या योगदान था और कहाँ कहाँ से वो आती थी वो भी हम उनको बताएंगे। आपने जैसे कहा हमारे अभी चावला साहब ने कि कल संस्कृत और मैथिली में भी संविधान का जो ट्रांसलेशन हुआ है, इन बुक्स का भी जो है लोकार्पण होगा। 2 पुस्तकें, संविधान बनाने की जो प्रक्रिया कैसे रही थी और हमारा जो संविधान बनाने में जो भूमिकाएं जिन जिन की थी उनको लेकर के 2 पुस्तकें, उनका भी कल लोकार्पण होगा सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति जी के द्वारा। और जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो महत्वपूर्ण हमारे संविधान के आधार स्तंभ रहे हैं, उनकी जानकारी भी हम साल भर देंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो जस्टिस की बात करते हैं संविधान में, हमारे प्रस्तावना में, उनकी जानकारी भी हम जनता को देंगे। और व्यक्ति की गरिमा, उसमें बाबा साहब के क्या विचार थे, उनकी जानकारी भी हम देंगे। देश की एकता और अखंडता हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इस सारे विषयों की हम जानकारी देंगे इस पूरे कार्यक्रम में। मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद। Of the adoption of the Constitution in India is a very big event. हमारे लिए एक खुश नसीब की बात है कि हमारा समय में हम लोगों को भारत के संविधान का 75 वर्ष पूरा होने पर पार्लियामेंट में इवेंट में हिस्सा लेने के लिए मौका मिल रहा है। राष्ट्रपति जी के कल उद्बोधन होगा और दोनों हाउस के लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स का जॉइंट सिटिंग संविधान सदन में होगा और उसमें 75th ईयर्स ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेलिब्रेशन यहाँ दिल्ली में होगा। और साथ साथ में देश में हर एक जगह अलग अलग कार्यक्रम कई जगह में किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग उसी सदन में बैठेंगे जहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिटिंग हुए थे और कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था। इसलिए ये ऐतिहासिक पल है। मैं मानता हूं कि इसमें सिर्फ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का ये इवेंट नहीं है। ये हर एक भारतीय, हर एक भारत के नागरिक सबको मिल करके संविधान दिवस में शरीक होना है, दिल से मानना है और प्रियम्बल को पढ़ना है। ये महत्वपूर्ण बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में एडॉप्ट हुआ। उसके बाद हमारा देश को एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी
वाइब्रेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रूप में कायम किया है। अगर ये संविधान इस रूप में नहीं मिलते तो भारत देश आज पूरा दुनिया में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, मोस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, सब अलग अलग तरीके से भारत के जो डेमोक्रेटिक सेटअप हमारे सिस्टम प्रोसेस को सराहना करते हैं। गजेंद्र जी भी बताएंगे। ये साल भर का कार्यक्रम है। मैं कल जब दोनों सदन के सदस्य को राष्ट्रपति जी संबोधित करेंगे तो उसके बाद मैं मानता हूं कि ये कोई पार्टीबाजी नहीं होकर के, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई इस गुट उस गुट का नहीं, एक भारतीय होने के नाते हम संविधान दिवस को मनाएंगे। 2015 से मनाने का प्रक्रिया शुरू हुआ और कल का सेलिब्रेशन के बाद जो एक साल का सेलिब्रेशन का कार्यक्रम जो रखा है और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए संविधान को इज्जत रखते हुए, संविधान को मानते हुए संविधान दिवस को बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। मैं भारत के संविधान को अंगीकृत करने के 75 साल पूरे होने के इस सौभाग्यपूर्ण अवसर पर वर्ष भर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल से जो कार्यक्रम प्रारंभ होंगे उनके इस कर्टन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए माननीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, आदरणीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, सम्मानित अधिकारीगण और प्रिय पत्रकार बंधुओं बहनों, आप सबका मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आप सबको इस प्रेस वार्ता में आने के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा आदरणीय किरण रिजिजू जी और आदरणीय अर्जुन राम जी ने कहा, यह हम सब के लिए एक सौभाग्य का अवसर है कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जिस तरह से वर्ष पर्यंत आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐसा हमने सेलिब्रेट किया, उसी श्रृंखला में संविधान जो हम सबका स्वाभिमान भी है, भारत का संविधान जो केवल मात्र एक कानूनी दस्तावेज होने के बजाय लोकतंत्र, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की मूर्त भावना को हम सब के बीच में मूर्त रूप देने वाला एक जीवंत दस्तावेज है। उस दस्तावेज के 75 को अंगीकृत करने, जिसके आधार पर हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ऐसा पहचान बनाने में अपने सफल हुए, जिस संविधान के अनुरूप काम करते हुए आज 75 साल में भारत प्रगति करते हुए इस मुकाम पर आकर के पहुंचा है कि पूरे विश्व भर में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। उस संविधान के 75 साल पूरे होने का अवसर, सामान्यतः किसी व्यक्ति के जीवन में 75 साल बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन एक देश और देश के लिए और एक ऐसा देश जिसका हजारों वर्षों का इतिहास रहा हो और आने वाले हजारों सालों तक जो व्यवस्था इस देश में रहने वाली है, उसके लिए 75 साल का कालखंड कोई बड़ा अवसर नहीं है। लेकिन निश्चित ही 75 साल का ये अवसर हम सब लोगों के लिए एक इंट्रोस्पेक्शन का अवसर अवश्य है कि पूरा देश इसके साथ में जुड़े, इस भावना के साथ में कि जो दूरदृष्टा संविधान निर्माता थे और उनकी जो दीर्घ दृष्टि थी, जो फारसाइटेडनेस थी, जिसके आधार पर उन्होंने संविधान की रचना की, न केवल रचना की अपितु विश्व का सबसे जीवंत और सबसे विस्तृत संविधान बनाने में ऐसी सफलता प्राप्त की। न केवल संविधान का निर्माण किया अपितु आने वाले भारत के भविष्य की आधारशिला भी उसके आधार पर रखी। पूरा देश उसके साथ में जुटे। इस दृष्टिकोण से सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में संविधान को अंगीकृत करने के 75 वर्ष के इस अवसर पर वर्ष पर्यंत देश भर में विभिन्न कार्यक्रम हैं। उन कार्यक्रमों का आगाज कल से होने वाला है। जैसा आप सबके सामने संस्कृति सचिव श्री अवनीश चावला जी ने अपने डिटेल प्रेजेंटेशन में जो बातचीत कही है, उनको बहुत ज्यादा नहीं दोहराते हुए मैं सिर्फ इतना अवश्य आपके सामने कहना चाहता हूं
कि एक ऐसा अवसर है जो हम सब के लिए, जिस तरह से संविधान में हमारे कर्तव्यों की चर्चा की गई, हमारे अधिकारों की चर्चा की गई, इस अवसर पर हम सब का ये कर्तव्य है कि हम देश के अधिकतम लोगों को किस तरह से उसके साथ में जोड़ सकें। संविधान निर्माताओं की दृष्टि, उनकी अपेक्षा और उनकी मंशा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट के माध्यम से उनका इंटेंट ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन या पर्टिकुलर क्लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, इसको लोगों के बीच में एक बार फिर ला सकें। इसका प्रत्येक नागरिक उसके साथ जुड़ करके संविधान के प्रीएम्बल को पढ़ते हुए अपना वीडियो अपलोड करके उसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेगा। संविधान पर एक लघु फिल्म बना करके या मल्टीपल फिल्म बना करके किस तरह से संविधान निर्माताओं की दृष्टि क्या थी, उसके बारे में और अधिक लोगों के साथ लोग जुड़ाव महसूस कर सकें, बेहतर दृष्टिकोण से समझ सकें। इस दृष्टिकोण से संविधान के निर्माण की उस यात्रा और यात्रा के पीछे भाव, इसके पीछे जो है विस्तार से लोगों के सामने लाया जा सके, फिल्म का निर्माण किया जाएगा। जैसा अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया गया था कि संविधान में, और अभी आदरणीय कानून मंत्री जी ने भी चर्चा की कि मोटे तौर पर लोगों को संविधान की पुस्तक जो मूल रूप में है उसके बारे में शायद अब संज्ञान नहीं है। उसमें कितनी सुंदर कैलीग्राफी भी हुई और साथ साथ में इतना सुंदर आर्ट वर्क भी उस समय के देश के ख्यातनाम चित्रकारों ने किया है। भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए प्रसंग, हनुमान का लंका विजय का प्रसंग, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, इन सब के जीवन से जुड़े हुए विषय और भारत की सभी खातियों को चित्रों के माध्यम से संविधान की पुस्तक में उल्लेखित किया गया। उस आर्ट को सम्मान देने की चर्चा सारी तरफ है, तो हमारे संविधान को अधिकतम लोग अपने दृष्टिकोण से जान सकें, अपनी रुचि के अनुरूप विषयों को उसमें खोज सकें। इस दृष्टिकोण से एक AI चैटबॉट हमने डेवलप किया है और उसे टू नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसमें प्रश्न करें और उस प्रश्न का हमें ठीक से उत्तर मिले। इस दृष्टिकोण से एक चैटबॉट को भी जो है संबंधित प्रश्नों के उत्तर को देने के प्राप्त करने के दृष्टिकोण से उसको पॉपुलराइज करने के लिए भी काम किया जाएगा। और वर्ष पर्यंत चलने वाले इस स्मरणोत्सव में सांस्कृतिक प्रदर्शनियां होंगी, ऑडियो संदेश विभिन्न रेल यात्राओं के समय, विभिन्न हवाई यात्राओं के समय हमारे संविधान से जुड़े हुए विषयों को लेकर के पहुंच सकें। इस दृष्टिकोण से हवाई अड्डों के अनाउंसमेंट में, रेलवे स्टेशन के अनाउंसमेंट तक उस विषय को ले जाया जा सके ताकि अधिकतम लोग संविधान के साथ में जुड़ सकें। संविधान सभा का, जैसा माननीय मंत्री जी ने अभी आप सबके सामने चर्चा करते हुए कहा कि संविधान सभा में डिबेट के समय डिबेट करने वाले लोगों की मंशा क्या थी, क्या भावना थी उन्हें, उनकी उस पर्टिकुलर क्लॉज को जो है इनेक्ट करने को लेकर के, उसे संविधान का हिस्सा बनाने को लेकर के, उस भावना को लोगों तक समझने, किन लोगों ने अपने विचार किस दृष्टिकोण से उस विषय के लेकर के रखे थे, उस विषय के पक्ष और विपक्ष में कौन कौन लोग थे, देश को आज इस बात को जानने की आवश्यकता है। उन वाद विवादों का डिजिटलीकरण करके, उनका नाट्य रूपांतरण करके विभिन्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उनको जो है उनको प्ले किया जाए। इस दृष्टिकोण से भी हमने रचना की है। संविधान से जुड़े हुए विषयों की सांस्कृतिक प्रदर्शनी पूरे देश भर में अनेक स्थानों पर हो, विभिन्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हो, इसकी व्यवस्था की है। संविधान का अनुवाद, जैसा कहा गया कि संस्कृत और मैथिली में कल सम्मानीय प्रधानमंत्री जी उसे जारी करने वाली, जैसा सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि मेरी मां स्वरूप है। इस श्रृंखला के चलते हुए हम संविधान को अधिकतम लोगों तक एक बार फिर नए सिरे से ले जा सके, इस विषय को लेकर के हमने इस साल भर के कार्यक्रमों की रचना की है। मैं आप सब मीडिया के मित्रों से भी इस बात का आग्रह करता हूं कि क्योंकि संविधान हम सब का साझा संपत्ति है, हम सब की साझी विरासत है, हम सब का साझा स्वाभिमान है, और साथ साथ में संविधान इस 75 साल के लेकर के 100 साल के बीच का एक कालखंड, जैसे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल की संज्ञा दी, जिसमें देश के 140 करोड़ लोग संकल्पबद्ध होकर के भारत को विकसित भारत, भारत को समर्थ भारत, भारत को संपन्न भारत ऐसा बनाने के लिए जुटे।
उस महत्वपूर्ण कालखंड में संविधान हम सब लोगों के लिए संकल्प का, विकास के संकल्प का अधिष्ठान भी है। इस अधिष्ठान की यात्रा के साथ में आप सब लोग जुटे हैं। ये constitution75.com जो वेबसाइट बनाई है, इस वेबसाइट की शुरुआत आपको पॉपुलराइज करने के लिए आप अपने मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रिंट का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी है, उन सब में आप उसको पॉपुलराइज करने के लिए सहयोग करें, ऐसा विनती करते हुए जो इंटरैक्टिव फीचर्स इसमें बनाए गए हैं, AI चैटबॉट को पॉपुलराइज करने को लेकर के आप सब लोग सहयोग करेंगे, ऐसी आप सबसे अपेक्षा करते हुए हम अपने स्वाभिमान स्वरूप संविधान को जन जन तक पहुंचाने के लिए सब लोग सम्मिलित प्रयास करें। आप सब इसके लिए यहाँ शरीक हुए, मैं आप सबका हृदयपूर्वक एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर।